हेलो फ्रेंड्स। दोपहर को मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था जो कि महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए यूज़फुल होगा और एक सिंपल जेनेटिक्स या फिर बेसिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर ये क्वेश्चन था। यहाँ पे भी क्वेश्चन मैंने लिखा है और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार ये स्टेट एग्जाम में आते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से है डीएनए स्ट्रक्चर या फिर मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल या फिर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ट्रांसलेशन प्रोसेस, जिसे हम प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं, तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट पर ये जो क्वेश्चन है ये डिपेंड है, क्योंकि हमें पता है वॉट एवर द इंफॉर्मेशन इट इज स्टोर्ड इन डीएनए मॉलिक्यूल, so that information it is copied in messenger RNA molecule in the form of genetic code. And we also know that so that each codon it specifies a particular amino acid which will be present in the protein molecule. Okay, so now whatever that messenger RNA molecule is here, now having the different codons, for example later on, which will specify the specific amino acid. So according to that genetic code present in the messenger RNA molecule, so protein molecules will be synthesized. So this is called as the translation process. So the first process where the information which is stored in DNA molecule, it is copied in messenger RNA molecule, so that is called as transcription process. And according to the information, so or the codons present in that messenger RNA molecule, that is genetic code, so according to that amino acids added to the protein molecule. So this second step it is called as translation. Okay, अगर आपको ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन कुछ आते हैं सेट एग्जाम में तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो उसी टाइप का एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिया था दोपहर को, जिसका सॉल्यूशन मैं अभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज अ कोड फॉर ए स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, सो यहाँ पे जो दिया है उन्होंने ये डीएनए मॉलिक्यूल दिया है एंड दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ दिस डीएनए मॉलिक्यूल 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके, दिस इज द ओरिएंटेशन इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम। नाउ हियर सी दिस इज द सीक्वेंस ऑफ दैट डीएनए मॉलिक्यूल और दैट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, so adenine, thymine, adenine, so these are the nucleotides present in that strand of that DNA molecule here. So here whatever that nucleotides will be there, that nucleotides are missing here. Okay, so again there is these 3 nucleotides they have given containing this thymine, 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 and again that remaining nucleotides are missing. Okay, so these are the numbers given to that nucleotides. Okay, 1 2 3 4 5 like that. So whatever that missing nucleotides are here, so these are the 5 6 7 and from 11 to 19. Okay, now later on that messenger RNA sequence of mRNA molecule is given. Okay, so here that sequence is not given from first to 10 we can see here, but for this 11 12 and 13 nucleotide the complementary sequence we can see here which is present on the messenger RNA molecule, it will be that nucleotide containing this cytosine, then guanine and uracil. Okay, so these are the, or this is the one codon we can say which is present on this mRNA molecule. Okay, now again these nucleotides are missing here from that mRNA molecule, that is 14 15 16 or these one from first to 10. Okay, so these nucleotides are missing from that mRNA molecule, and that last nucleotides or codon we can see here, this is the one codon here. So in the number that is 17 18 19, so that is U, Z and A. So that means that nucleotides present on that mRNA molecule they are consisting of uracil, guanine and adenine. तो इस तरह से ये mRNA का सीक्वेंस है। ओके, खाली 2 कोडन का सीक्वेंस यहाँ पे दिया है, ये रिमेनिंग जो है उसका आपको फाइंड आउट करके उस पर्टिकुलर कोडन ने कौन सा अमीनो एसिड स्पेसिफाई किया है वो आपको जेनेटिक कोड जो है, जो 64 कोडॉन्स का टेबल हमने बहुत बार देखा है, आपने पढ़ा है, तो उसमें आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे टीआरएनए का सीक्वेंस दिया है और टीआरएनए का सीक्वेंस है जस्ट 14 15 16 का सीक्वेंस इन्होंने दिया है टीआरएनए का, एंड वो है यू जी एंड जी, दैट इज यूरासिल, that nucleotide consisting of uracil, nucleotide consisting of guanine and that nucleotide consisting of again guanine.
ओके, एंड हियर दे हैव गिवन द अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड मतलब यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोटाइड आप पुट करोगे, मतलब फाइंड आउट करोगे, ये ब्लैंक स्पेसेस जो है मिसिंग न्यूक्लियोटाइड्स हम कहेंगे इसे, 5th नंबर का, 6th नंबर का एंड 7th नंबर का, ये जो भी है इस डीएनए स्ट्रैंड पर जो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे प्रेजेंट है 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर एंड 7th नंबर पर, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे उनका एमआरएनए पर जो कोडॉन का सीक्वेंस आएगा वो यहाँ पर आएगा, एंड उस कोडॉन जो अमाइनो एसिड स्पेसिफाई करेगा वो है यहाँ पर मिथानॉइड। ओके, होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट्स हियर। सो लेटर ऑन, और यहाँ पे जो उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दी है, ये जो 80-80 जो सीक्वेंस है ये प्रोमोटर सीक्वेंस है, एंड हमें पता है कि प्रोमोटर ये क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को एक डायरेक्शन देता है कि कहाँ से ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इनिशिएट करना है, स्टार्ट करना है। ओके, सो दिस 80-80 इट इज अ प्रोमोटर सीक्वेंस। ओके, तो ये हो गया इंफॉर्मेशन जो कि इस क्वेश्चन में दी है। अभी ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, सो यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस 3 to 4 क्वेश्चंस। और उसमें पहला क्वेश्चन है कि यूजिंग द जेनेटिक कोड, मतलब आपको जेनेटिक कोड जो है, जो अभी मैंने बताया था आपको कि 64 कोडॉन्स है, उसमें वो टेबल आपको रेफर करना है। ठीक है, यूजिंग द जेनेटिक कोड फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए शोड। मतलब आपको क्या करना है कि जो मिसिंग न्यूक्लियोटाइड्स वहां पे है डीएनए स्ट्रैंड में, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके न्यूक्लियोटाइड्स आपको फाइंड आउट करना है और आपको वो स्ट्रैंड वहां पे कंप्लीट करना है। ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका। ठीक है, कि क्या करना है पहले क्वेश्चन में, आपको जो भी डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, जहां पर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स मिसिंग है, तो वो आपको फाइंड आउट करना है, एंड देन यू हैव टू कंप्लीट दैट डीएनए स्ट्रैंड हियर। ओके, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स कोडेड फॉर बाय दिस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। मतलब अभी जो डीएनए स्ट्रैंड आप कंप्लीट करोगे, पूरे उसके जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो फाइंड आउट करके, उसके बाद आपको अमाइनो एसिड्स, मतलब ये डीएनए स्ट्रैंड कौन से अमाइनो एसिड्स कोड करता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो डायरेक्टली, इंस्टेड ऑफ डूइंग डायरेक्टली, पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा कि ये जो भी डीएनए स्ट्रैंड है, मतलब अभी जो सीक्वेंस क्वेश्चन में हमने देखा है, और आपने पहला वाला जो ये क्वेश्चन है उसमें आपने वो सीक्वेंस जो था डीएनए स्ट्रैंड का वो आपने फाइंड आउट किया। स्किपिंग न्यूक्लियोटाइड्स जो होते, मिसिंग न्यूक्लियोटाइड्स जो थे वो आपने मतलब फाइंड आउट किए। तो आपके पास अभी ये कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए का सीक्वेंस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और एमआरएनए का सीक्वेंस जब आप फाइंड आउट करोगे, तो हमें पता है कि 3 लेटर्स ऑन एमआरएनए मॉलिक्यूल, और दैट ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स हम कह सकते हैं, वो क्या करेगा, एक कोडॉन को मतलब एक कोडॉन हम उसे कहेंगे। ठीक है, एंड बाद में जेनेटिक कोड को, ये टेबल को रेफर करके उस पर्टिकुलर कोडॉन, मतलब कौन सा अमाइनो एसिड वो स्पेसिफाई करेगा, वो हमें ढूंढना है, फाइंड आउट करना है। तो ये आपको फिर उसके बाद जब आप ये प्रोसेस पूरा करोगे, तब आपको ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ओके, अमाइनो एसिड्स कोडेड फॉर बाय दिस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। उसके बाद जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, राइट द कोड फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कंप्लीटेड इन क्वेश्चन ए। मतलब क्वेश्चन ए में जो डीएनए आप ढूंढ निकालोगे, जो सीक्वेंस आप फाइंड आउट करोगे, उसके बाद पूरा डीएनए स्ट्रैंड आपको मिलेगा, और उस स्ट्रैंड का जो भी कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड है उसका सीक्वेंस आपको ढूंढना है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ठीक है, मतलब ये ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है क्वेश्चन ये वाला, वो आप कंप्लीट फाइंड आउट करोगे, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सीक्वेंस निकालना है। ओके, ये तीसरा क्वेश्चन आपका, राइट द कोड फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए कंप्लीटेड इन क्वेश्चन ए। ओके, सो डीएनए नाउ यू आर हैविंग, और उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रैंड यू आर हैविंग, नॉट कंप्लीट डीएनए। आपके पास अभी स्ट्रैंड है जो कंप्लीट है, कंप्लीट सीक्वेंस आपके पास है डीएनए का, स्ट्रैंड का। तो उसके उस पर्टिकुलर स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सीक्वेंस क्या रहेगा, वो आपको ढूंढ के निकलना है। दैट इज इजी एक्चुअली। ओके, अगर आपके पास है तो। और चौथा जो क्वेश्चन है वो है, आइडेंटिफाई द नॉनसेंस सीक्वेंस इन दिस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए।
मतलब वो जो ए में जो आपने डीएनए स्ट्रैंड ढूंढ के निकाला है उसमें कुछ नॉनसेंस सीक्वेंस वहां पर है क्या, मतलब जिसे हम स्टार्ट कोडॉन भी कहते हैं, क्योंकि दैट पर्टिकुलर कोडॉन, नॉट स्टार्ट कोडॉन, दैट इज अ स्टॉप कोडॉन। ओके, उसे हम कह सकते हैं नॉनसेंस कोडॉन और इट इज अ स्टॉप कोडॉन। ठीक है, क्योंकि ये जो कोडॉन वहां पे आएगा इट डज नॉट स्पेसिफाई एनी अमाइनो एसिड, ये एक भी अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करता है, या फिर जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो स्टॉप करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, ट्रांसलेशन प्रोसेस, वो स्टॉप कोडॉन। तो ये स्टॉप कोडॉन फिर प्रोटीन सिंथेसिस मतलब ट्रांसलेशन को स्टॉप करेगा, सो इसीलिए हम स्टॉप कोडॉन कहेंगे। एंड इट डज नॉट स्पेसिफाई एनी अमाइनो एसिड, तो इसीलिए हम उसे नॉनसेंस कोडॉन या नॉनसेंस सीक्वेंस कहेंगे। ओके, तो वो आपको फाइंड आउट करना है, नॉनसेंस सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये इस तरह से 4 क्वेश्चन है, आपके समझ में होप ये पूरे क्वेश्चन आए होंगे। अभी इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, ये अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है यहाँ पर। ठीक है, कि द फॉलोइंग इज अ कोड फॉर ए स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अगर इसी से हमें समझ में आएगा कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, मिसिंग स्पेसेस है, यहाँ पर क्या कोडॉन आ सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखिए 3 प्राइम, और ये इसे तो मतलब भूल जाए अभी ये, क्योंकि ये प्रोमोटर सीक्वेंस है। ओके, तो 1 2 3 4 ये पूरा जो है न्यूक्लियोटाइड्स, ये प्रोमोटर सीक्वेंस के न्यूक्लियोटाइड्स है, और नीचे हमें क्या दिया है, उन्होंने एमआरएनए दिया है। ठीक है, अगर अभी यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम, पहले क्वेश्चन, अभी यहाँ पे जो कौन सा सीक्वेंस आ सकता है, अगर ये अमीनो एसिड हम देखेंगे MET, दैट स्टैंड्स फॉर मिथेनोइन। ओके, और मिथेनोइन अगर यहाँ पे होता है तो जब आप जेनेटिक कोड का टेबल देखोगे तब आपके समझ में आएगा कि मिथेनोइन का जो कोडॉन होता है वो होता है AUG। ठीक है, मिथेनोइन का कोडॉन कौन सा होता है, मिथेनोइन का कोडॉन होता है AUG, दैट इज द सीक्वेंस ऑन द मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल। क्योंकि मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल में जब AUG आएगा तब जो अमीनो एसिड वो स्पेसिफाई करेगा वो अमीनो एसिड रहेगा MET, दैट इज मिथेनोइन। तो अभी ये एमआरएनए का सीक्वेंस हमें मिल गया है यहाँ पर AUG। ओके, अगर मैसेंजर आरएनए पर एडेनाइन, मतलब दैट न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग एडेनाइन, न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग यूरासिल एंड न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग ग्वानिन, ये अगर वहां पर है तो डीएनए स्ट्रैंड में जो सीक्वेंस आएगा वो अभी रहेगा, क्योंकि एडेनाइन कब आता है कॉम्प्लीमेंट्री, उसके लिए क्या है, सो देयर विल बी थाइमिन। ओके, सो देयर विल बी थाइमिन। अगर यहाँ पे यूरासिल आता है, क्योंकि आरएनए में मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल इट हैज द यूरासिल when there is, that is instead of thymine molecule, that means on DNA strand there will be adenine. Okay, and if there is a guanine is there in messenger RNA molecule, so there will be cytosine. ये होगा सीक्वेंस दैट डीएनए स्ट्रैंड का TAC, दैट इज न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग थाइमिन, एडेनाइन एंड साइटोसिन। ओके, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ये तो सीक्वेंस ऑलरेडी उन्होंने दिया है TTT। ओके, 11 12 13 पर जो बोला है उन्होंने वो दिया है CZU। ओके, मतलब दैट मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल इट हैज द न्यूक्लियोटाइड कंसिस्टिंग ऑफ साइटोसिन, ग्वानिन एंड यूरासिल। मतलब यहाँ पे साइटोसिन है, ग्वानिन है, यूरासिल है। ओके, मैसेंजर आरएनए पर, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर डीएनए स्ट्रैंड का सीक्वेंस क्या रहेगा, मैसेंजर आरएनए में साइटोसिन कब आता है, अगर डीएनए स्ट्रैंड पर वहां पे ग्वानिन है तो। ठीक है, मैसेंजर आरएनए में ग्वानिन कब आएगा, अगर डीएनए स्ट्रैंड पर वहां पे साइटोसिन है तो। ठीक है, उसके बाद मैसेंजर आरएनए में यूरासिल कब आएगा, अगर डीएनए स्ट्रैंड में एडेनाइन होगा तब। ओके, सो GCA। अभी ये सीक्वेंस हो गया हमारा, यहां तक तो डीएनए स्ट्रैंड का सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। अभी उसके बाद ये 6 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हमें ढूंढना है। फिर से एक ये भी, यहाँ पे भी देखो एमआरएनए का सीक्वेंस उन्होंने दिया है UGA, तो यूरासिल यहाँ पे कब आएगा, अगर डीएनए स्ट्रैंड पर एडेनाइन है, ग्वानिन पर कब आएगा, अगर डीएनए स्ट्रैंड पर साइटोसिन है, और यहाँ पे एडेनाइन कब आएगा, अगर डीएनए स्ट्रैंड पर थाइमिन है। अभी रह गई ये 3 सीक्वेंस 14 15 और 16। तो ये कैसे निकालना, फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखो आपको टीआरएनए का सीक्वेंस इन्होंने दिया है
14, 15, 16 नंबर पर, जो कि UGG है। अभी tRNA पर अगर ये है तो इसे हम क्या कहते हैं tRNA पर? सो इसे हम कहेंगे एंटी कोडॉन। ये सीक्वेंस कौन सा रहेगा? एंटी कोडॉन का सीक्वेंस रहेगा। ओके, सो एंटी कोडॉन का अगर ये सीक्वेंस है, मतलब दैट इज द सीक्वेंस विच इज अगेंस्ट दैट कोडॉन प्रेजेंट ऑन mRNA मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पे अगर UGG एंटी कोडॉन का सीक्वेंस है तो ये मैसेंजर आरएनए पर उसके कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा कोडॉन, जिसे हम कहेंगे यहाँ पे आएगा एडिनाइन। अगर एंटी कोडॉन पर U है तो मैसेंजर आरएनए पर कोडॉन जो रहेगा पहला न्यूक्लियोटाइड हम कहेंगे उसे, वो रहेगा एडिनाइन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड। ओके, उसके बाद यहाँ पर अगर G है तो यहाँ पर C रहेगा और यहाँ पर भी C रहेगा। ओके, मतलब 14, 15, 16 ये mRNA का सीक्वेंस हमने यहाँ पे निकाला जो है ACC। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे जो अभी स्ट्रैंड DNA स्ट्रैंड का सीक्वेंस क्या आ गया? सो यहाँ पर अगर एडिनाइन साइटोसिन है, उसके अकॉर्डिंगली जो DNA स्ट्रैंड का सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा, अगर यहाँ पर एडिनाइन है तो इधर डेफिनेटली देयर विल बी थायमिन। ओके, यहाँ पे अगर साइटोसिन है तो यहाँ पे ग्वानिन आएगा, फिर से अगर यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे ग्वानिन आएगा। तो इस तरह से ये पहला सीक्वेंस जो है दैट इज mRNA मॉलिक्यूल का सीक्वेंस हमने वो निकाला है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। सो हियर दैट mRNA सीक्वेंस, नॉट mRNA, DNA स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है वो हमने यहाँ पर निकाला है। ओके, तो ये सीक्वेंस अभी मिल गया हमें, टोटल सीक्वेंस। सो that is that DNA strand having this sequence here now. Okay, so here that AT then TAC then उसके बाद है TAC के बाद है ट्रिपल T। ओके, ट्रिपल T, उसके बाद है GCA, ये सीक्वेंस GCA, उसके बाद TGG। ओके, और उसके बाद है ACT। तो ये हो गया पूरा DNA स्ट्रैंड का सीक्वेंस, जो कि ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यूजिंग द जेनेटिक कोड फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेगमेंट ऑफ DNA शो। तो ये हमने अभी जो क्वेश्चन था, मतलब जो DNA स्ट्रैंड था, जो DNA सेगमेंट था, वो हमने कंप्लीट किया। ओके, उसके बाद क्या क्वेश्चन है? फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स कोडेड फॉर बाय दिस DNA स्ट्रैंड और स्ट्रैंड ऑफ DNA। अभी हमें करना है कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस हमें फाइंड आउट करना है जो कि ये DNA स्ट्रैंड कोड करेगा, मतलब ये DNA स्ट्रैंड। अभी हमारे पास टोटल DNA स्ट्रैंड है, मतलब उसका सीक्वेंस हमारे पास है, तो उसके अकॉर्डिंगली mRNA का सीक्वेंस क्या रहेगा? ये तो प्रोमोटर सीक्वेंस है यहाँ पर, और यहाँ पे जो DNA स्ट्रैंड का सीक्वेंस है ये थाइमिन, एडिनाइन, उसके बाद साइटोसिन। ओके, सो अगर DNA स्ट्रैंड पर ये TAC है तो mRNA स्ट्रैंड पर थाइमिन इट इज कॉम्प्लीमेंट्री विथ एडिनाइन और न्यूक्लियोटाइड कंसिस्टिंग ऑफ दैट एडिनाइन। अगर एडिनाइन इधर है तो इधर यूरासिल आएगा, क्योंकि इन मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल और इन RNA मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ थाइमिन देयर विल बी यूरासिल। एंड अगर यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे ग्वानिन आएगा। ओके, उसके बाद अभी यहाँ पे थाइमिन है, तो इधर का सीक्वेंस क्या आएगा फिर? मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल। सो दैट सीक्वेंस ऑन मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल इट विल बी, सो थाइमिन अगर वहां पे है तो एडिनाइन एंड एडिनाइन। ओके, उसके बाद फिर ये कंप्लीट होगा, ये mRNA सीक्वेंस हो गया कंप्लीट। अभी हमें ये भी पता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट दी 1 कोडॉन। ओके, तो ये एक कोडॉन हो गया, ये दूसरा कोडॉन हो गया कंसिस्टिंग ऑफ AAA, ये तीसरा कोडॉन हो गया CGU, ये चौथा कोडॉन हो गया ACC, ये पांचवा कोडॉन हो गया UGA। ओके, ये 5 कोडॉन हो गया अभी। तो अभी हमें फिर से ये जेनेटिक कोड का जो टेबल है 64 कोडॉन्स एंड उस पर्टिकुलर कोडॉन ने कौन से अमीनो एसिड स्पेसिफाई किए वो हमें देखना है। तो ये ऑलरेडी उन्होंने दिया था, AUG स्पेसिफाई मिथेनोइन। अभी हमारे पास दूसरा जो कोडॉन है वो है AAA।
तो अगर हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कोडॉन में या जेनेटिक कोड में, तो मेरे पास अभी मैंने ये सामने रखा है मेरे टेबल जो है जेनेटिक कोड का। तो ये टेबल जो है ये AAA, सो इट स्पेसिफाइज द अमाइनो एसिड कॉल्ड एज लाइसिन। ओके, LYS मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद जो ये कोडॉन जो है CGU, तो ये स्पेसिफाई करता है that CGU, so it specify the amino acid called as, just 1 minute, CGU. Okay, so I will check that which amino acid will be specify this codon. Okay, CGU. So just 1 minute, I will check that. So that CGU amino acid, so it is specified by third codon, that is CGU. Just 1 minute. So it specifies the amino acid called as arginine. Okay, so here ARG I have written. उसके बाद जो कोडॉन है वो है ACC. So that ACC, it codes the amino acid called as threonine. Okay, so just 1 minute. Again I will check here. ACC, so it codes the amino acid threonine. Okay, so this one here I will write here THR. Okay, so this is the methionine, lysine, arginine and threonine. Okay, and उसके बाद जो है जो कोडॉन आया है यहाँ पर UGA, so UGA, it is actually a stop codon. So this codon, it is a stop codon. Okay, this codon, it is a stop codon, और it is a nonsense codon भी हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि ये कोडॉन कोई भी अमीनो एसिड स्पेसिफाई नहीं करता है। तो अभी यहाँ पे आपको जो मिला है ये पूरा अमीनो एसिड का सीक्वेंस आपको मिला है। ओके, सो होल सीक्वेंस ऑफ दैट अमीनो एसिड नाउ यू हैव गॉट हियर। और हमें जो क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन वो था कि फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स कोडेड फॉर बाय द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। तो अमीनो एसिड जो डीएनए स्ट्रैंड था हमारे पास, वो कौन से मतलब अमीनो एसिड को कोड करता है यहाँ पर, अगर एमआरएनए के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो वो है मिथायोनाइन AUG, AAA लाइसिन, CGU अर्जिनाइन एंड ACC थ्रियोनिन। और ये UGA जो है ये स्टॉप कोडॉन है, नॉनसेंस कोडॉन है। ओके, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है राइट द कोड फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कंप्लीटेड इन क्वेश्चन ए। अभी डीएनए स्ट्रैंड जो हमें मिला है क्वेश्चन ए में, उसका हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड लिखना है। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अगर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये सीक्वेंस तो ऑलरेडी हमारे पास है, ये सीक्वेंस पूरा डीएनए का, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अगर हम देखेंगे तो वो अभी आपके समझ में आया होगा, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सीक्वेंस हमें कॉम्प्लीमेंट, अभी ये स्ट्रैंड है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का भी यहाँ पे अगर एडेनिन है तो यहाँ पे थाइमिन रहेगा, यहाँ पे अगर थाइमिन है तो यहाँ पे एडेनाइन रहेगा, उसके बाद यहाँ पे अगर एडेनाइन है तो अगेन देयर विल बी थाइमिन। ओके, एंड अगेन देयर विल बी एडेनाइन। ओके, उसके बाद थाइमिन TAC है, मतलब यहाँ पे थाइमिन की जगह पर आएगा कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस सीक्वेंस रहेगा वो एडेनाइन रहेगा, यहाँ पे थाइमिन रहेगा, यहाँ पे गुआनिन रहेगा, अगेन यहाँ पे एडेनाइन 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 रहेगा, यहाँ पे गुआनिन है तो यहाँ पे साइटोसिन आएगा, यहाँ पे गुआनिन आएगा, यहाँ पे थाइमिन आएगा, फिर से यहाँ पे T जो है थाइमिन की जगह पर एक कॉम्प्लीमेंट्री जो है एडेनाइन, अगेन गुआनिन है तो ये साइटोसिन आएगा, यहाँ पे भी साइटोसिन आएगा, यहाँ पे देखोगे तो थाइमिन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रहेगा, उसके बाद यहाँ पे गुआनिन रहेगा, उसके बाद यहाँ पे थाइमिन रहेगा। तो इस तरह से, और इसका जो ओरिएंटेशन रहेगा ये रहेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओरिएंटेशन। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। तो इस टाइप, अभी ये जो सीक्वेंस है आपका, ये है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड का सीक्वेंस, एंड आपने कैसे निकाला इसको, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ दिस स्ट्रैंड, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन का। तो ये मिल गया आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर। ओके, सो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं है ये, खाली अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट अगर आपकी ये क्लियर है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो।
ओके। और लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर, आइडेंटिफाई द नॉनसेंस सीक्वेंस इन द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ओके, मतलब इनसे अभी ये जो डीएनए स्ट्रैंड आपको दिया है क्वेश्चन 1 में, तो उसमें से आपको क्या फाइंड आउट करना है, नॉनसेंस सीक्वेंस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी नॉनसेंस सीक्वेंस अगर हम देखेंगे यहाँ पर, अभी एक ओरिजिनल स्ट्रैंड आप देखो यहाँ पर जो आपने फाइंड आउट किया है, डीएनए स्ट्रैंड, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड। ओके, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सी हियर, यहाँ पे जो दिया है आपको, तो इसमें आपको नॉनसेंस सीक्वेंस या फिर नॉनसेंस स्ट्रैंड आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये डीएनए स्ट्रैंड है और ये डीएनए स्ट्रैंड का सीक्वेंस है। यहाँ पर समझो, अगर यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे UGA जो ये कोडॉन यहाँ पे मिला है, ये स्टॉप कोडॉन है। ओके, UGA जिसे हम नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं, स्टॉप कोडॉन और नॉनसेंस कोडॉन। और इसका अगर हम सीक्वेंस मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस देखेंगे डीएनए स्ट्रैंड पर, तो वो कौन से रहेंगे, सो ये रहेंगे ACT। ठीक है, एडेनाइन साइटोसिन थाइमिन, ये डीएनए स्ट्रैंड प्रेजेंट है, इसीलिए मैसेंजर आरएनए में जो कोडॉन आ गया यहाँ पर, वो आ गया UGA। ठीक है, और ये कोडॉन अगर UGA यहाँ पे आता है, तो ये हमें पता है कि ये स्टॉप कोडॉन है। UGA क्या है, स्टॉप कोडॉन है, और स्टॉप कोडॉन को ही हम क्या बोलते हैं, इट डज नॉट, दैट स्टॉप कोडॉन, इट डज नॉट स्पेसिफाई एनी अमीनो एसिड, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉनसेंस कोडॉन। ओके, तो इसीलिए ये नॉनसेंस कोडॉन का, स्टॉप कोडॉन्स का जो डीएनए स्ट्रैंड पर सीक्वेंस है, वो है ACT। तो इस तरह से हमें ये जो चौथा क्वेश्चन था यहाँ पर, इसका भी आंसर हमें मिल गया। ओके, आइडेंटिफाई द नॉनसेंस सीक्वेंस इन दिस स्ट्रैंड, सो इट इज ACT। ओके, तो इस तरह से हमने ये मतलब जो 4 क्वेश्चन थे यहाँ पर, तो इसे हम कहेंगे नॉनसेंस कोडॉन कहेंगे। तो ये जो 4 क्वेश्चन थे जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी थी, तो उसके पूरे के पूरे 4 के 4 आंसर हमने यहाँ पे निकाले। ये नॉनसेंस कोडॉन है चौथे क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स, होप ये जो क्वेश्चन था ये आपको समझ में आया होगा, एंड ये पूरा का पूरा वीडियो आप देखिए। अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अगेन टुमारो आई विल बी विथ अनदर क्वेश्चन। एक दोपहर को दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया था और थोड़ा सा बेसिक था, उसका भी एक्सप्लेनेशन मैं वहाँ पे यहाँ पर करूँगा, और वो भी आपको समझा के दूंगा कि उसका आंसर क्या आ सकता है। चलो, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी जो भी फ्रेंड्स है जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपके साथ अच्छे स्कोर करे, अच्छे मार्क्स ले। ओके, और अगर फ्रेंड भी अगर आपके साथ रहेंगी तो डिस्कशन के लिए या फिर स्टडी के लिए और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब आप ग्रुप स्टडी करोगे, फ्रेंड के साथ स्टडी करोगे, तो वो स्टडी आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाएगी। चलो, थैंक यू।